Srangshala hastani Montri Okrani Manjak Mungo, Chennai ni Mohan Foundation ni Ozama Rogbai Kaisa Koksa Panda Klaika, Health Department, Shangrong Salo Kaisa Kokthum Panda Klai Okuk Shaka, Jibishakam Nokni MS Dr. Shankar Chakraborty. Brainy bimar manjagai thine rokni body organs no kobon shakhamia boro rokni aro transplantation khlainani bagai hasda habangte state health department no subanai Chennai ni Mohan Foundation abono teyino Srangshala hasini montri okrani manjak mongo Mohan Foundation ni ozamarogbai kaisa koksa panda khlaika health department akogno sangrong salo jibi shakam nogo kokthom panda khlaijak mani bisingte shawai khnaroka jibi shakam nokni MS Dr. Shankar Chakraborty. In fact, আমরা চাইছি দানের ব্যাপারে ত্রিপুরার একটা সুনাম আগে থেকেই আছে। ব্লাড ডোনেশন বা রক্তদান এটা একটা বিশালভাবে সাকসেসফুল প্রোগ্রাম ত্রিপুরাতে। আমরা চাইছি রক্তদানের মতোই অঙ্গদানের প্রোগ্রামটা একটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম ত্রিপুরাতে হোক। সারা ভারতবর্ষের কাছে ত্রিপুরা নজির রাখুক যে ডিজিজ ডোনারের ক্ষেত্রে মানে ব্রেইন ডেথের পার্সনের ক্ষেত্রে অঙ্গদানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সবার আগে থাকবে। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাব এবং এর জন্য সমগ্র ত্রিপুরাবাসী 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী সবার সহযোগিতা আমাদের দরকার। বিশেষ করে যারা মিডিয়া এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত আছেন ওনাদের সহযোগিতা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার, কারণ সেখানে সচেতনতাই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস যার থেকে আমরা সাকসেসটা পাবো। সচেতনতা থাকলেই সেই এতক্ষণ যাদের বক্তব্য আপনারা শুনলেন একটা জিনিসই স্পষ্ট যে ডিজিজ ডোনারের ক্ষেত্রে একটি লোক যখন মারা যান অর্থাৎ ব্রেন ডেথ হয় ওনার আর জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না, সেটা দীপক গুপ্তা স্যার বললেন। কিন্তু উনি যদি ওনার অঙ্গ দান করেন সেই মুহূর্তে ওই পরিবারের কাছে অ্যাপ্রোচ করা খুব কঠিন ব্যাপার এবং অত্যন্ত মানে ট্যাক্টফুলি এবং অত্যন্ত অন্যভাবে ওনার কাছে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। তো সেটা যদি আগের থেকেই অ্যাওয়ার থাকে তাহলে কাজটা অনেকটা সহজ হয় এবং একটা মানুষ মারা যাওয়ার পরেও অন্যের মধ্যে যে অনেক দিন বেঁচে থাকা অন্য অনেকজন মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে, যেমন অন্তত 8 জন মানুষের মধ্যে একজন মৃত মানুষ বেঁচে থাকতে পারে ওনার এই অর্গানগুলি দিয়ে। এবং এই যে একটু আগে একটা সুন্দর কথা পল্লবী ম্যাডাম থেকে আমরা শুনলাম যে ওনার একটা পরিবার তাদের লাভড মৃতজনের ক্ষেত্রে তখন ওনাদের প্রিয় মৃতজনের ছবিতে মালা লাগাননি, কারণ বললো কি যে উনি মারা যাননি, উনি অন্য 8 জনের মধ্যে জীবিত আছেন। অর্থাৎ কাউকে উনি হার্ট দিয়েছেন, কাউকে লিভার দিয়েছেন, কাউকে কিডনি দিয়েছেন, কাউকে কর্নিয়া দিয়েছেন, কাউকে প্যানক্রিয়াস দিয়েছেন, কাউকে স্কিন দিয়েছেন, কাউকে বোন মেরু দিয়েছেন। এভাবে অসংখ্য 23টি অর্গান দান করা যায়। কাজেই আমরা সবার কাছে অনুরোধ রাখবো আমরা যেখানে যেখানে যে কোনো অনুষ্ঠান হয় সেখানে অন্তত একটা সময় এই প্রসঙ্গে যেন রাখা হয়, এই প্রসঙ্গে যেন 2-4টি কথা বলা হয়। বিশেষ করে আমাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলি এখন থেকে হবে, রক্তদান শিবির এবং অন্যান্য শিবিরগুলি যেখানে হবে সেখানে আমরা অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য একটি প্রোগ্রাম রাখবো মানুষকে সচেতন করার জন্য, যাতে অঙ্গদানে মানে মরণোত্তর অঙ্গদানে ব্রেইন ডেথের পরে অঙ্গদানে সবাই যেন উদ্বুদ্ধ, সবাই যেন এগিয়ে আসে। और मैं मोहन फाउंडेशन करके एक गैर सरकारी संस्था है जो पिछले 27 साल से भारत में काम कर रही है। मैं उनके साथ पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मिशन ही यही है कि हम डिसीज़ डोनेशन या डोनेशन आफ्टर डेथ जिसको बोलते हैं, अंगदान जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ावा दें। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, सिर्फ लोगों को जानकार होना और देना काफ़ी नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स इसके लिए तैयार नहीं है, काफ़ी कानूनी इसकी ज़रूरतें हैं, उनको मीट करना, कुछ पॉलिसीज़ बनाना, सब कुछ तो पूरा 360 डिग्री अप्रोच लेते हैं। डेथ के टाइम पे फैमिली से बात करना आसान काम नहीं है, क्योंकि फैमिली को अभी आपने बताया है कि आपके प्रियजन की मृत्यु हो गई है और अब आप अंगदान के बारे में सोचें तो ये भी काम एक स्पेशलाइज्ड इंसान जो कि ट्रेंड हो इस काम से, फैमिली के दुख से डील करने में ट्रेंड हो, बहुत ज़रूरी है। पर बहुत ये ज़रूरी है कि 2025 में आप नहीं कह सकते कि हमारा स्टेट
ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार नहीं है। कल को कोई फैमिली हॉस्पिटल में आए, क्योंकि इतनी अवेयरनेस अब बढ़ रही है, इतने आर्टिकल्स लिखे आ रहे हैं, इतने लोग डोनेट कर रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, चाहे वो महाराष्ट्र में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे केरला में, कर्नाटका में, बहुत डोनेशंस अब पहले के मुकाबले से बढ़ रहे हैं। तो लोग पढ़ते हैं, और कल को कोई फैमिली आके बोले हम भी करना चाहें, तो हम लोग उठ के ये नहीं बोल सकते भी हम तैयार नहीं हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो आज के टाइम पे हमें ये मौका देना है हर इंसान को और हर फैमिली को। और हाँ, जैसे कि डॉक्टर दीपक गुप्ता ने कहा कि बहुत ज़्यादा अंगों की कमी है। लिविंग डोनेशन में सिर्फ किडनी और एक लिवर दे सकते हैं, सारे अदर अंगों के लिए आपको कोई मृत इंसान चाहिए। लिवर और किडनी में भी ज़रूरी नहीं है फैमिली में कोई देने वाला हो, देना चाहता भी हो तो शायद मैचिंग डोनर ना हो, तो वो इंसान के पास अगर कोई देने वाला ही नहीं है तो वो कहाँ जाए। वहाँ पे काम आता है ऑर्गन डोनेशन। आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज अगर जाएंगी कि कैसे किसी ने दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी इस फैमिली के बारे में, मैं अभी हाल ही में उनसे बात करी थी, 2-3 साल पहले उन्होंने डोनेट किया था और वाइफ और बच्चों से बात हो रही थी। उन्होंने कहा अभी तक हमने अपने पापा की फ़ोटोग्राफ में माला नहीं लगाया है, क्योंकि वो हमारे लिए मरे नहीं हैं, वो कई लोगों में अभी तक जिंदा हैं। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि मृत्यु पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर मृत्यु के साथ हम क्या करें उस पर हमारा कंट्रोल ऑर्गन डोनेशन दे पाता है। तो अगर फैमिलीज़ डोनेट करती हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है उनकी, हम कुछ कर पाए, ज़िंदगियां बचा पाए, जो शायद जीते जी ना कर पाए होंगे, और कितनी ज़िंदगियां बचती हैं। तो इस काम को तो हम सब ने बढ़ावा देना है। हर इंसान इस रूम में जो बैठा है, आप हैं, हम हैं, मेडिकल रोल, नॉन मेडिकल रोल, मीडिया, सबका रोल है इसको बढ़ावा देने का। और यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसका समर्थन करें, जैसे एज त्रिपुरा टेक्स अप दिस प्रोग्राम। मैं एम्स दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूँ। मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद देता हूँ अगरतला मेडिकल कॉलेज का और जितने भी स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पे हमें इनवाइट करा हमारे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। कल हम सब लोग बैठे और हमें इस बात से बड़ी खुशी हुई कि हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज, सबका पूरा सपोर्ट मिला। यहाँ पे आके हमने सिर्फ ये बताया कि क्या क्या आपको गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्टाफिंग कैसे करना है, कैसे ब्रेन डेथ की कमेटी बनाई जानी है आपको, और कैसे किसी व्यक्ति को जिसको गंभीर चोट लगती है और जो एक पोटेंशियली ब्रेन डेड लगता है तो उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। इसमें हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। भारत सरकार की नोटो ऑर्गेनाइजेशन और रोटो एंड सोटो ये भी आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और इसके साथ साथ मोहन फाउंडेशन जो एक NGO है वो भी आपको क्या क्या पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आपको चाहिए, जिससे कि यहाँ पे आपके अपने शहर में ये डिसीज़ डोनेशन स्टार्ट कर दिया जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की, एज ए न्यूरोसर्जन आपको मैं बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति की अगर मस्तिष्क यानी कि ब्रेन डेथ अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो उसकी मृत्यु होती है। कोई भी मरीज जिसको हम लोग भारत सरकार के द्वारा पारित थोआ एक्ट के पारित में जो ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन की टेस्ट अगर हम लोग करते हैं, जिसमें 4 डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उसमें 4 डॉक्टरों की टीम अगर ये सर्टिफाई करती है कि मरीज की मृत्यु यानी कि मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, वो पेशेंट की एक्चुअल मृत्यु होती है। ऐसे मरीजों का आजकल क्योंकि वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध है तो ऐसे मरीजों का हार्ट बीट करता रहता है, तो ऐसे को हम लोग कैडावर विद ए बीटिंग हार्ट भी बोलते हैं कि वो मनुष्य की मृत्यु हो गई लेकिन उसका जो है हार्ट बीट काम कर रहा है। ऐसी अवस्था में ये मरीज अपने अंगों का दान कर सकते हैं, जिसके लिए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स मरीज के रिश्तेदारों से बात करते हैं और बताते हैं कि आपके मरीज की मृत्यु हो गई है लेकिन आपका मरीज 8 नए लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। हमारे देश में तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख किडनीज हर साल चाहिए होती है। त्रिपुरा में ही अगरतला में मुझे कल बताया गया कि यहाँ पे 2 रीनल ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पे करीबन 150 से 200 किडनी ट्रांसप्लांट हर साल की ज़रूरत है। अभी आपके शहर से आपके मरीजों को दूसरे शहरों में भेजा जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे अपने ही शहर में, हमारी अपनी ही स्टेट में काफ़ी सारे पोटेंशियल पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर हम ठीक से वक्त रहते उनका सर्टिफिकेशन ठीक से कर पाए
और उनको मेंटेन कर पाए उनके अंगों को, तो उन मरीजों से 7 से 8 नई जिंदगियां दी जा सकती हैं। सो हमारा सपोर्ट आपके लिए पूरा रहेगा बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन से, और हम लोग कभी भी आपकी टीम को कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और आने वाले वक्त में भी मैंने डॉक्टर चक्रवर्ती से सुझाव इनको दिया है कि आप एक 2-3 महीने के बाद में, कुछ पीरियड के बाद में कुछ वर्कशॉप्स कीजिए, जिसमें कि हम लोग आपके डॉक्टरों को बता पाए कि ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे करना है। जो भी हमारा अनुभव पिछले कई सालों का है वो आपसे हम लोग साझा करेंगे। आशा पांडा कक सानानी थांगे जीबी शाखामनों एमएस डॉक्टर शंकर चक्रवर्ती सावे खनारखा ऑर्गेन्स डोनेशन ते ट्रांसप्लांटेशन तांगबाटाक नाहारे तोंगमानी मोहन फाउंडेशन हने आशा ऑर्गेन्स डोनेशन ते ट्रांसप्लांटेशन तांगबाटाक ना ते देबोटाल बिदर नांगकमानी कक सावे खनारखा राजाखर आगलनि सिमी प्रणामनि कक थुम चिनि खरां।